Assalamu alaikum students. This is Shabana Mir, Maths teacher of ASF Public School. Today I am going to start 6th topic of Maths. Before to start our topic, I would like to share an example with you. Students, look at this picture. Students, हमारे पास हर रो में यहाँ कितने स्क्वायर्स हैं? 4. और हर कॉलम में कितने स्क्वायर्स हैं? 4. There are 4 squares in each row and 4 squares in each column. Total squares are 16. When we will write mathematically, then we will write like this. 4 4s are 16. Students, can you tell me how many times 4 is getting multiplied here? Yes, 2 times. So we can write like this. 4 multiplied by 4 is equals to 4 square. 4 is base and 2 is power. So students, our today's topic is power of numbers. Students, look at these examples. How many times 5 is here? 1 time. 5 multiplied by 5. How many times 5 is here? 2 times. 5 multiplied by 5 multiplied by 5. How many times 5 is here? 3 times. 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. How many times 5 is here? 4 times. 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. इसी तरह से यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि 5 को 100 टाइम्स लिखना होगा. इसीलिए इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे like this. 5 is to power 100. Here 5 is base and 100 is power. यहाँ 100 पावर से पता चल रहा है कि 500 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. Students, now look at these examples. 5 is equals to 5. How many times 5 is here? 1 time. 5 multiplied by 5 is equals to 5 square. How many times 5 is here? 2 times. 5 multiplied by 5 multiplied by 5 is equals to 5 cube. यहाँ पे 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. 5 क्यूब, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं. एक्सपोनेंट्स और पावर्स हेल्प अस टू राइट वेरी लार्ज नंबर्स इन शॉर्ट. Students, now open your maths book, page number 33. Topic is powers of numbers. Exercise 1, question A. Write the exponential form in the given boxes. Number 1 is 6 multiplied by 6 multiplied by 6 multiplied by 6. यहाँ पे 6 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम. So exponential form is 6 is to power 4. That is the answer. Number 2. Look at this question. How many times 7 is getting multiplied? 7 यहाँ पर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 टाइम. So the answer is 7 is to power 6. Students, बाकी तमाम क्वेश्चन आपने इसी मेथड से करने हैं. Students, now look at question number B. Write in expanded form to show how many times each one of these numbers have been multiplied. Number 1 is 7 is to power 9. स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर देखिए 9 है. इसका मतलब आपने 7 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है like this. Number 2, 6 is to power cube. Cube, it means 3 टाइम मल्टीप्लाई. आपने यहाँ पे ये शो करना है कि 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है like this. ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है. इसी तरह से बाकी आपने क्वेश्चन करने हैं.
Students, now look question number D. Find the value and arrange the numbers in ascending order. Number 1 is 2 cube. Cube यानी 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. जब आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 3 is to power 4. पावर 4 से पता चल रहा है कि आपने यहाँ पे 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. जब आप इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 81. नाउ नंबर 3 क्वेश्चन. 7 स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 7 7 ज़ा 49. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर है 8, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 81 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 49. अब आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है. इन तीनों आंसर्स को अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर 8 है, उससे बड़ा 49 है और उससे बड़ा 81 है. तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 8, 49, 81. दैट इज़ द आंसर. Now look at question number E. Find the value and arrange the numbers in descending order. Number 1 is 4 cube. Cube 3 times multiply. 4 multiply by 4 multiply by 4. 4 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 64. 6 स्क्वायर. 6 multiply by 6. 6 6 ज़ा 36. नंबर 3 इज 5 स्क्वायर. 5 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 64, नंबर 2 का आंसर है 36 और नंबर 3 का आंसर है 25. तो जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर और फिर उससे छोटा नंबर. तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 64. इसके बाद आप लिखेंगे 36, फिर आप लिखेंगे 25. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आंसर आ जाएगा? 64, 36, 25. दैट इज़ द आंसर. स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 35. एक्सरसाइज 2. क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. वो नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी भी टेबल में ये नहीं आता है, तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे 2 एंड 1. इसी तरह से 3 किसी भी टेबल में नहीं आता सिवाय अपने टेबल के. तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा. फैक्टर क्या होता है? A factor is a number that can divide an other number without leaving a remainder. फैक्टर जब किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, बाकी कुछ नहीं बचता है. अब क्वेश्चन नंबर ए देखें. यहाँ पे 240 है. आप इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो किस तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 120. 2 को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. अब 2 के तो मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते हैं, तो हम 120 के फैक्टर बनाएंगे. 120 के फैक्टर किस तरह से बन सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 60. 60 के मज़ीद आगे 2 फैक्टर्स बन सकते हैं. वो कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 30. अब 30 के मज़ीद आगे फैक्टर बना सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15. इसी तरह से 15 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो वो कौन से फैक्टर बनेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. दैट इज़ द आंसर. बाकी क्वेश्चन आपने इसी मेथड से करने हैं. Students, now open page number 36. Exercise 3. Question is solve the following by using division method. Number 1 is 456. 456 को आप 2 से डिवाइड करेंगे. टेबल पढ़िए यहाँ पर. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 is carry,
1 जब 6 के साथ लगेगा तो ये कितना बन जाएगा 16, 2 8s are 16। 228 को अब आपने अगेन 2 से डिवाइड करना है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब यहाँ पे कितना है 114, अगेन 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 5s are 10, 1 कैरी, 1 जब 4 के साथ लग जाएगा तो कितना बन जाएगा 14, 2 7s are 14। अब यहाँ 57 है, 57 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 5 में से आप 3 माइनस करें तो कितना रह जाता है 2 रह जाता है, 2 जब 7 के साथ लगेगा तो कितना बन जाएगा 27, 3 9s are 27। अब यहाँ कितना रह गया 19, 19 किसी भी टेबल पे नहीं आता है, प्राइम फैक्टर है, ये एज इट इज़ यही रहेगा, 19 1s are 19। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19, दैट इज़ द आंसर। यू हैव टू अप्लाई same method in the remaining questions. Page number 36, exercise number 4. Question is expand and solve the following. Number A is 6 cube multiplied by 5 square. आपने यहाँ पे एक्सपेंड भी करना है और फिर मल्टीप्लाई करते हुए उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। 6 क्यूब का मतलब कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसके बाद 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 5 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आपने इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 216। अब आप 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25। अब 216 और 25 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5400। स्टूडेंट्स बाकी तमाम क्वेश्चंस में आपने यही मेथड अप्लाई करना है। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।